Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are again on unit number 8, but we are not going to discuss this unit. Today we will discuss writing skills of review number 2. Actually, after every 4 units, there is a review exercise, and today we will discuss review number 2. Here are 3 questions, and all these 3 questions are related to paragraph writing. Let's read first one. A memorable vacation. Imagine you have just returned from a memorable vacation. Write a narrative describing your vacation experience. Include details about the destination, the people you met, and the activities you enjoyed. Try to convey the emotions and significance of this vacation in your life. अच्छा, इस पैराग्राफ राइटिंग के लिए इन्होंने क्या पॉइंट्स बताए हैं कि नैरेटिव राइटिंग करते हुए आपने उन वेकेशन को डिस्कस करना है जो कि आपके लिए मेमोरेबल रही हो, ठीक है। और आपने वो स्पॉट भी बतानी है, वो एरिया भी बताना है जहाँ जिसको आपने विज़िट किया, ठीक है। आप वेकेशन में कहीं गए और आपने वो कौन सी जगह विज़िट की और वहाँ किन लोगों से मिले, वो कैसे लोग थे, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड द एक्टिविटीज़ यू एन्जॉयड, और किन किन चीज़ों को आपने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। ट्राई टू कन्वे द इमोशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेकेशन इन योर लाइफ, और उस टाइम पीरियड की, उन वेकेशन की सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, या फिर आपने और उसके साथ साथ आपने उन इमोशंस को डिस्कस करना है जो कि बेसिकली उन वेकेशन से रिलेटेड हैं और आपकी ज़िंदगी में अभी भी उनका कोई ना कहीं इम्पैक्ट है, ठीक है। चलिए जी, आई एम गोइंग टू शेयर अ पैराग्राफ विद यू. Okay. We Pakistani always feel pleasure to spend our vacation in northern areas. So here is a topic, a memorable vacation, and I wrote a paragraph on the trip to Hunza Valley. Let's read it. My most memorable vacation was a trip to breathtakingly beautiful Hunza Valley. It was an autumn morning when I went to this place. As I stepped out of my vehicle, I realized that the area located in the Gilgit-Baltistan region, Hunza Valley, is a paradise on earth with a lush green orchards and lakes. यहाँ तक क्या बताया गया है कि जो जिस स्पॉट का या जिस डेस्टिनेशन का या जिस एरिया का बताना था वो हुंजा वैली है, ठीक है। और जिस टाइम पे मैंने उस जगह को विज़िट किया वो ऑटम सीज़न था, ठीक है। और इस कदर खूबसूरत बेसिकली वो वैली है, वो जगह है कि वहाँ उसका जब आप फर्स्ट टाइम उसका जब खूबसूरती, उसका जब हुस्न देखते हैं तो आप सांस लेने तक का भूल जाते हैं, ठीक है। यानी इस कदर खूबसूरत है वो एरिया. I realized that the area located in Gilgit-Baltistan region, Hunza Valley, is a paradise on earth. और इस कदर खूबसूरत है कि ऐसे लगता है कि जैसे ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है. As I explored the valley, I was struck by the rich history and culture of the region. I visited the ancient Alted and Belted forts. I never spent such amazing vacation before this. अब यहाँ तक क्या बताया गया कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थी वो भी, अगर कोई हुंजा वैली जाए तो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस वहाँ की ज़रूर विज़िट करे, ठीक है। और वहाँ की बहुत रिच हिस्ट्री है, ठीक है। आई नेवर स्पेंड सच अमेजिंग वेकेशन, इससे पहले इतनी अमेजिंग या इतनी जॉयफुल या प्लेजरस वेकेशन टाइम पीरियड नहीं गुजरा. आई ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द लोकल मार्केट
As I prepared to leave Hunza Valley, I felt sadness, but I also knew that I would return one day, कि दोबारा भी इस जगह को कभी विजिट करने का इंशाल्लाह मौका ज़रूर मिलेगा. One day to again enjoy beauty of this place and to make my vacation more memorable. Hunza Valley had left an incredible mark on my heart, and, and I knew that it would remain a cherished memory forever. Means that the impression I had for Hunza Valley is almost unforgettable. Okay, here this paragraph is completed. Now we are moving to the second question of writing skills. The second question is also related to paragraph writing, and the topic of the paragraph they gave us is a mysterious event. Let's read the statement they have given. Write a narrative about a mysterious event that happened in your neighborhood. Describe the setting, characters involved, and the sequence of events leading up to the mystery's resolution. Engage the reader's curiosity and suspense throughout your narrative. ओके, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने एक ऐसी नैरेटिव राइटिंग करनी है जो कि बेसिकली किसी पुरस्कार वाक़या पर, पुरस्कार इंसिडेंट पे डिपेंड करती हो, और जब आप लिख रहे हो तो रीडर्स का क्यूरियोसिटी लेवल मेंटेन रहे. ठीक है, चलें इसको हम रीड कर लेते हैं. Okay. Let me clear this screen. A mysterious event. It was a foggy evening when I noticed something odd in our neighborhood. एक धुंध से भरी हुई शाम थी जब मैंने कुछ महसूस किया कि हमारे नेबरहुड में कुछ मुख्तलिफ है, जो रूटीन में ना होता हो. ठीक है, समथिंग ऑड जो कि यूजुअली ना होता हो और वो डिफरेंट हो पहले से. द ओल्ड हाउस इन आवर स्ट्रीट वेयर नो वन हैड लिव्ड इन फॉर ईयर्स हैड लाइट्स ऑन इन द विंडोज़. अब क्या बताया गया है कि हमारी स्ट्रीट में एक बहुत पुराना घर था कि जहाँ पे बहुत अरसे से कोई नहीं रह रहा था, बहुत सालों से कोई नहीं रह रहा था, और मैंने ये देखा कि उसकी खिड़की से रोशनी नज़र आ रही है. अच्छा, यहाँ कॉमा की जगह पर आप वेयर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कॉमा. अ मिस्टीरियस इवेंट. It was a foggy evening when I noticed something odd in our neighborhood. वो एक ऐसी शाम थी जो कि धुंध से भरी हुई थी और मैंने महसूस किया कि कुछ डिफरेंट हैपनिंग हो रही है हमारे नेबरहुड में. ठीक है, समथिंग ऑड यानी जो कि यूजुअली ना होता हो और डिफरेंटली कुछ हो रहा हो, पहले से मुख्तलिफ हुआ हो. द ओल्ड हाउस इन आवर स्ट्रीट no one had lived in for years had lights on in the windows. The old house in our street, यहाँ पर आप where भी लिख सकते हैं. ठीक है, आफ्टर कॉमा. where no one had lived in for years. एक पुराना घर जो कि हमारी स्ट्रीट में था और वहाँ कोई नहीं रहता था फ्रॉम सो लॉन्ग, बहुत सालों से. तो हुआ क्या कि उसकी विंडोज से ये देखा गया कि वहाँ पर लाइट्स ऑन हैं. आई डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट विद अ मिक्स फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अनईज. क्यूरियस था मैं ये बात जानने के लिए कि आज ऐसी ऑड हैपनिंग क्यों हुई है, तो मैंने ये तय किया, लेकिन मैं अनकम्फर्टेबल भी, अनईजी भी फील कर रहा था कि मैं ये देखूँ कि ऐसा क्यों है. As I walked close to this house, जैसे जैसे मैं उस घर के पास जा रहा था,
आई सॉ अ फिगर स्टैंडिंग इन द डोरवे। डोरवे में स्पेस नहीं देनी, डोरवे इज अ सिंगल वर्ड। अच्छा, आई सॉ अ फिगर स्टैंडिंग इन द डोर हाउस, मैंने किसी को देखा जो कि अपने डोरवे में खड़ा था। इट वॉज अ वुमेन, अच्छा वो एक लेडी थी। हर फेस हिडन इन द शेडोज, लेकिन साए में, और उसका जो फेस था वो छुपा हुआ था, नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपरली। शी डिडंट मूव और स्पीक, जस्ट स्टूड देयर। उसने कुछ भी नहीं बोला और ना ही वो वहाँ से मूव हुई, बस वो वहीं खड़ी थी, इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट। सडनली द डोर ओपन वाइडर। अब यहाँ तक देखें, ये जितनी भी हमने हैपनिंग मैंने लिखी हैं, यहाँ तक देखें, ये इस तरीके की वर्डिंग लिखी गई है, सेंटेंसेस लिखे हैं कि ऐसा फील हो, रीडर जो है वो ज़्यादा क्यूरियस हो जानने के लिए कि आगे क्या हुआ था, ठीक है। एंड इनसाइड आई सॉ द लिविंग रूम विच वॉज परफेक्टली फर्निश्ड लाइक समवन स्टिल लिव्ड देयर। अब यहाँ क्या कहा कि वो जो रूम था, जब डोर खुला तो मैंने देखा, अंदर देखा कि अंदर एक लिविंग रूम, जैसे हम बेडरूम कहते हैं, एक लिविंग रूम मैंने देखा, और वो इस तरीके से फर्निश्ड था कि जैसे वहाँ पे कोई रह रहा हो, यानी बहुत ही अरेंज्ड वे में। देन विदाउट वार्निंग द डोर स्लैम्ड शट। स्लैम्ड शट का क्या मतलब है? द डोर स्लैम्ड शट, के ज़ोर से जो दरवाज़ा पटक के मारा जाता है ना, उसके लिए टर्म यूज़ होती है। आई टर्न्ड एंड रैन टू होम। मैं मुड़ा और अपने घर की तरफ वापस भागा। द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक टू सी द डार्क हाउस अगेन, बट नो वन वॉज देयर। जब मैं अगली सुबह वहाँ दोबारा ये देखने के लिए, उस घर को दोबारा देखने के लिए गया कि अब वहाँ पर लाइट्स ऑन हैं, ऑफ हैं, या क्या सिचुएशन है, या क्या स्नैरियो है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सम सेड, कुछ ने कहा कि वो कोई जिन्नात थे, ठीक है, वहाँ पर। और अदर्स थॉट, लेकिन बाकियों का ये ओपिनियन था, इट वॉज अ ट्रिक ऑफ द फोक, कि वो फोक की वजह से ऐसा लग रहा था आपको। आई वॉजेंट श्योर, मैं कुछ नहीं कह सकता था, बट आफ्टर इवनिंग टाइम आई नेवर वेंट नियर टू दैट हाउस। इस इंसिडेंट के बाद, शाम के वक्त के बाद, मैंने उस जगह को कभी दोबारा विजिट नहीं किया या फिर उस घर के पास नहीं गया। ओके, हेयर 2 पैराग्राफ्स of writing skills from review number 2 is completed. अच्छा, इनको नोट डाउन, इन पैराग्राफ्स को एक सजेशन मैं आपको यहाँ पर दे दूँ कि इन पैराग्राफ्स को जब नोट डाउन करें तो ज़रूर साथ में इसकी ऑडियो को, वॉइस को सुने 1-2 दफ़ा, ताकि उससे ये क्या होगा, उससे उसका बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स अगर उसको फिर बाद में कभी नहीं भी पढ़ते नियर टू देयर एग्ज़ाम्स, तो एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें माइंड में रह जाएंगी, ठीक है। तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। ये तो पता ही है सबको कि अगर आपने कुछ नया सीखना है या और ऐसा सीखना है कि जो आपको लगे कि आपको याद रहे, तो उस का बेटर वे ये होता है कि उसको सुना जाए। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।